So in the previous video we have started our chapter number 15 and we have completed example number 1, 2 and 3. So today we are going to start with example number 4, which says one card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards. Calculate the probability that the card will first be an ace and not be an ace. So ace क्या होते हैं? इक्का, इसको बोलते हैं इक्का. So there are 4 A's in a 52 cards. Okay, so first है हमारा that be it will be an A's, मतलब favorable outcome क्या हो जाएंगे? There are 4 A's. Okay, so let's just write there are 4 A's in a deck. Let E be the event the card is an ace. Okay, so favorable outcome क्या हो जाएगा? 4. favorable outcome is 4. Therefore, probability of E is equals to favorable outcome divided by total outcome. So, favorable outcome is 4, total outcome is 52. So, there is 1/13. Okay. So therefore probability of E is equals to 1/30. And for the second event, not be an ace. Okay, so let F be the event the card is not an ace. ओके, सो फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएंगे? 52 - 4 मतलब 4 एज है, उसके अलावा के सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे? हो जाएंगे नॉट एन एज. सो फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा? फेवरेबल आउटकम्स is equals to 52 - 4 is equals to 48. Therefore P of F is equals to favorable outcomes divided by total outcomes. So this is 48 divided by 52. आपको लिखना ही है that favorable outcomes divided by total outcomes. ठीक है, so the answer will be 48 divided by 52. Okay, now move on to next, which is example number 5. Two players, Sangeeta and Reshma, plays a tennis match. It is known that the probability of Sangeeta winning the match is 0.62. So what is the probability of Reshma winning the match? Okay, so यहाँ पे हमें 2 players दिए हैं. Okay, we are having 2 players in which one is Sangeeta and another one is Reshma. So उसमें क्या दिया है? दोनों क्या कर रहे हैं? They are playing tennis match. उसमें what is the probability that Reshma winning the match? हमें probability of Sangeeta दिया है. So पहले हम लिख देते हैं let S and R denote the events that Sangeeta wins the match and Reshma wins the match respectively. Okay, so S किसके लिए हो जाएगा? संगीता के लिए, and R हो जाएगा for रेशमा. So the probability of, here we are having the probability of Sangeeta's winning.
So the probability of Sangeeta's winning P of S is equals to कितना दिया है 0.62. As I said earlier कि कोई भी एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट की जितने भी इवेंट्स अकर होती है उन सब का क्या होता है, एडिशन 1 होता है. देखो अगर रेशमा जीतती है तो संगीता हार जाएगी, ठीक है. तो संगीता का हार जाना वो क्या होता है, रेशमा का विनिंग होता है. सो संगीता का जो लूज है मतलब जो हारना है उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट बोल सकते हैं. दैट इट इज द कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ संगीता's विनिंग. ठीक है, वो किसका हो जाएगा, रेशमा का हो जाएगा. देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ Reshma's winning is equals to क्या हो जाएगा 1 माइनस पी ऑफ एस. यस, क्या तो आप उसको डायरेक्टली भी ऐसा बोल सकते हो कि जितने भी एक्सपेरिमेंट के इवेंट होते हैं उन सब का एडिशन कितना होता है, 1 होता है. यहाँ पे 2 प्लेयर है तो दोनों का प्रोबेबिलिटी का एडिशन मतलब पी ऑफ एस प्लस पी ऑफ आर इज 1 होना चाहिए. बट वी वांट टू फाइंड पी ऑफ आर, तो पी ऑफ आर क्या हो जाएगा, पी ऑफ आर हो जाएगा 1 माइनस पी ऑफ एस. सो 1 माइनस 0.62. ओके, सो द आंसर विल बी 0.38. ओके, रेशमा का विनिंग चांसेस कितना है 0.38. नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट विच इज वन ऑफ द मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन. ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में भी आ चुका है एंड बच्चे बहुत कंफ्यूज भी होते हैं इसमें. सो लेट जस्ट फर्स्ट understand what the question try to say. Okay, so example number 6 says Savita and Hamida are friends. What is the probability that both will first different birthdays and the same birthday? Okay, so different birthday कब होगा, मतलब जस्ट लाइक कि सविता एंड हमीदा का डिफरेंट डे पे बर्थडे आएगा, मतलब इंडिविजुअल डे पे बर्थडे आएगा. समझ में आ रहा है. जस्ट लाइक कि सविता का बर्थडे आ रहा है 10th जुलाई को एंड हमीदा का बर्थडे आ रहा है 10th अक्टूबर को. तो ठीक है, तो पूरे मंथ मतलब पूरे 12 के 12 महीनों में उन दोनों का बर्थडे इंडिविजुअल डे पे आ रहा है. ठीक है, दोनों का बर्थडे एक ही दिन पे नहीं आ रहा है, मतलब दोनों की जो डेट है वो क्या है, डिफरेंट है. ठीक है, सो उसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा कि 365 डेज में से कोई एक ही दिन उनका फेवरेबल होगा, मतलब एक ही दिन उनका बर्थडे आएगा. तो फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा. ठीक है, ये हो गया दे आर हैविंग डिफरेंट बर्थडेज. नाउ द सेकेंड वन सेज द सेम बर्थडे. ठीक है, ओके. सो इफ हमीदा's बर्थडे इज डिफरेंट फ्रॉम सविता's, द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ऑफ फॉर हर बर्थडे. मतलब यहाँ पे देखो सविता और हमीदा दोनों का इंडिविजुअल नहीं ढूंढना है हमको, कोई भी एक का ढूंढना है. मतलब सविता के अकॉर्डिंग हमीदा का अगर हम फाइंड करते हैं सो 365 में से -1 कर देंगे जो सविता का बर्थडे होगा. उसके अलावा हमीदा का बर्थडे कोई भी दिन पे हो सकता है. ओके, डिड यू गेट दैट. सविता एंड हमीदा आर 2 बेस्ट फ्रेंड्स. ठीक है, तो हमें उस यहाँ पे ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है कि दे आर हैविंग डिफरेंट बर्थडेज. ठीक है, तो जहाँ पे सविता का बर्थडे आएगा ऑन दैट पर्टिकुलर डे, अगर सविता का बर्थडे है कोई एक पर्टिकुलर डे पे, तो वो डे हम क्या कर देंगे 365 में से माइनस कर देंगे. तो हमीदा का बर्थडे का पॉसिबिलिटी कितना हो जाएगा, बाकी के बचे 364 डेज. ठीक है, ये हो गया व्हेन दे आर हैविंग डिफरेंट बर्थडेज. व्हाट इफ दे आर हैविंग द सेम बर्थडे, मतलब एक ही दिन पे है. सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमने डिफरेंट बर्थडे वाला फाइंड किया है उसको हम माइनस कर देंगे. सीधी सी बात है ना, दे आर द अपोजिट इवेंट्स, एलिमेंट्री इवेंट्स है ना, मतलब एक ही दिन पे बर्थडे नहीं होना, उसका प्रोबेबिलिटी हम जो फाइंड करते हैं और उसका अपोजिट
दैट इज एक ही दिन पे बर्थडे हो ना, उसको हम वन में से आराम से माइनस कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स जस्ट राइट दैट द फर्स्ट, उससे पहले वाला जो स्टेटमेंट है वो आप अपने हिसाब से लिख देना टेक्स्ट बुक में से, ठीक है। इफ हमीदा's बर्थडे is different from Savita's birthday, the number of favorable outcome for her birthday इज, क्या करेंगे 365 टोटल डेज में से हम सविता का जो बर्थ डेट है वो क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे। तो हमीदा का पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम हो जाएगा 364। देयरफॉर सो प्रोबेबिलिटी ऑफ हमीदा's बर्थडे डिफरेंट फ्रॉम Savita's birthday is equals to 364 divided by 365 and the second says कि दोनों का बर्थडे एक ही दिन पे आता है, ठीक है। सो ये कौन सा पॉसिबिलिटी है, दिस इज द प्रोबेबिलिटी व्हेन दे आर हैविंग डिफरेंट बर्थडेज। तो अगर सेम का हमें फाइंड करना है तो इसको अगर हम 1 में से माइनस कर दे देन वी आर हैविंग द सेम प्रोबेबिलिटी। Therefore, probability of Savita and Hamida have the same birthday is equals to 1 minus probability of different birthdays. Both have different birthdays. As I said earlier, कि दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, मतलब एक ही दिन पे होना प्लस एक ही दिन पे नहीं होना, उसका एडिशन क्या होगा 1 हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज 1 माइनस 364 डिवाइड बाई 365 विच इज इक्वल्स टू 365 माइनस 364 डिवाइड बाई 365। सो द आंसर विल बी 1/365। इज दैट क्लियर? देखो वापस एक बार समझा देती हूँ। यहाँ पे क्या है, हमीदा एंड सविता आर द बेस्ट फ्रेंड्स। तो हमें ऐसी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि हमीदा का जो बर्थडे है वो सविता के बर्थडे से क्या होना चाहिए, डिफरेंट डे पे होना चाहिए, ठीक है। सो डिफरेंट डे पे कब होगा, जिस दिन सविता का बर्थडे है वो दिन हम क्या कर देंगे, 365 डेज में से माइनस कर देंगे। तो हमीदा का जो फेवरेबल आउटकम है उसकी बर्थडे आने के लिए क्या हो जाएगा, 364 डिवाइड बाय 365 एंड द सेकेंड प्रोबेबिलिटी सेज दैट दे आर हैविंग द सेम बर्थडे, मतलब एक ही दिन पे आएगा। सो एक ही दिन पे आएगा मतलब पहले हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड की कि एक ही दिन पे नहीं आएगा, ठीक है। दूसरा इवेंट क्या हो जाएगा, एक ही दिन पे आएगा। दोनों का एडिशन क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो 1 माइनस दैट पर्टिकुलर, ठीक है। तो वो हो जाएगा कि P ऑफ सविता एंड हमीदा हैव द सेम बर्थडे इज इक्वल्स टू 1/365। Okay, so we will just stop here. In the next video we are going to continue with some more examples. Till then, thank you.